Hello, welcome to YSR Academy. Let's start with the reproduction in lower plants. I hope you people are doing well. बड़े टाइम के बाद वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं हम. So, we started with reproduction in lower and higher plants chapter, जिसमें हमने reproduction की बात के बारे में पहले introduction दिया. फिर हमने differentiation किया between asexual and sexual reproduction. Then we started with asexual reproduction के types, for example fragmentation, budding, spore formation, binary fission, gemule formation, vegetative propagation. फिर हमने sexual reproduction के बारे में एक बहुत ही बढ़िया सा flowering plant का diagram बनाया, LS of flower. This diagram is important from board point of view. बहुत ही important diagram है. This diagram is important from board point of view. याद रखे सभी बच्चे. पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा था. एसेंशियल वॉल, दो टाइप के वॉल्स होते हैं, एसेंशियल वॉल एंड एक्सेसरी वॉल. एसेंशियल वॉल्स के मतलब, एसेंशियल वॉल्स मतलब दे आर इंपॉर्टेंट वॉल्स, वेयरएज एक्सेसरी वॉल्स मतलब दे, ऐसा नहीं कि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे आर बेसिकली कैलिक्स एंड करोला आर एक्सेसरी, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट. कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ बर्ड पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, तो उनके लिए एक्सेसरी वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट. एसेंशियल वर्ड्स एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम. मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, फीमेल पार्ट को गाइनीशियम बोलते हैं. एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल और पिस्टल. देन we did androecium. सबसे important male reproductive part of flower is known as androecium, which consists of anther and filament. Anther and filament को join करने वाला part is known as connective. This is the diagram, filament and anther. Anther के अंदर बहुत सारे pollen grains present होते हैं. फिर हमने differentiation पढ़ा था between monothecous and diathecous anther. Then we did TS of anther. TS of anther board exam point of view बहुत important question है. brief के लिए normally पूछा जाता है. Even from CET point of view this part tapetum is important. Then sporopollinean part CET point of view बहुत important है. NEET में भी इसके questions पूछे गए PYQs. Then फिर हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा था. TS of anther, hypodermal cells consist of archiporeal cells. Archiporeal cells दो parts में divided है, outer parietal and inner sporogenous cells. Then outer parietal finally consist of anther wall. Anther wall के भी चार layers होते हैं, epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. Inner sporogenous cell consist of sporogenous tissue and finally it forms microspore tetra. फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ा था, जिसमें स्पोरोजेनस टिश्यू, व्हेन स्पोरोजेनस टिश्यू विद द हेल्प ऑफ meiotic division get converted into microspore or pollen grain is known as microsporogenesis. Or rather the simple definition what we can frame is sporogenous tissue. When diploid sporogenous tissues undergo meiosis and forms microspore or pollen grain haploid, which is haploid, is known as microsporogenesis. पोलन स्पोरोजिनस टिश्यूज का दूसरा नाम है पोलन मदर सेल, या फिर इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं. MMC, कभी कभी MMC भी यूज करते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोर मदर सेल के लिए हम MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए हम MMC एब्रिविएशन यूज करते. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एग्जाम में. फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर. तो पोलन ग्रेन का एक सिंपल सा डायग्राम. पोलन ग्रेन के बाद दो पोलन ग्रेन के पास पोलन वॉल प्रेजेंट होता है, और यही वॉल दो टाइप्स का होता है, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन. एक्साइन कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिनियन which is the most hard complex organic substance and non biodegradable substance, whereas intine is made up of cellulose and pectin. पोलन वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है
साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारे आपको एक्साइन के बीच में बहुत सारे इंटरप्शंस दिखाई देंगे। इन इंटरप्शंस को हम जर्म पोर कहते हैं, विच इज थिन वॉल्ड। अब जर्म पोर हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में देखेंगे कि जर्म पोर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। स्पोरोडर्म, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिनियन, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीट, पोलन वायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था। पोलन वायबिलिटी मतलब फंक्शनल एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट पोलन वायबिलिटी। ठीक है, these factors are temperature and humidity. For example, rice and wheat 30 मिनट्स तक सर्वाइव करते हैं, whereas सोलानेसी फैमिली का टमाटो, ब्रिंजल, ये कुछ एग्जांपल है सोलानेसी फैमिली के प्लांट्स के। सोलानेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी के इस फैमिली में जो प्लांट्स आते हैं या फिर जो एग्जांपल्स आते हैं वो बहुत से महीनों तक इनके पोलन ग्रेन वायबल होते हैं। वायबल मतलब दे कैन सर्वाइव even after months. If you try to germinate, they will germinate very easily. देन हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में हम है ना एक बार रिवीजन करते इस डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट का। सो वी विल स्टार्ट विथ, अगेन वी विल डू अ वेरी नाइस रिवीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेसिक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद रखना है। सो बेसिक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम बनाया था, रिवीजन के टाइम हमने ऑलरेडी किया है। दिस इज माइक्रोस्पोर, या इसे हम पोलन ग्रेन बी कह सकते हैं। सो दिस इज माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन, इनर वॉल इज नोन एज इंटाइन। इंटरप्शंस बिटवीन एक्साइन वॉल इज नोन एज जर्म पोर। जर्म पोर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, दिस इज द न्यूक्लियस। अब यहां पे होगा सबसे पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, let me draw exine and intine. अब यही माइक्रोस्पोर आगे चलकर बनाएगा दो टाइप के सेल्स। वन इज नोन एज वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा सेल, वी विल टर्म दिस सेकेंड सेल एज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टू सेल माइक्रोस्पोर। टू सेल माइक्रोस्पोर क्यों कह रहे हैं हम यहां पे, क्योंकि एक वेजिटेटिव सेल फर्स्ट सेल, सेकेंड जनरेटिव सेल दूसरा सेल, दो सेल, टू सेल्ड माइक्रोस्पोर या टू सेल्ड माइक्रोस्पोर यहां पे बनेगा। एंड दिस टू सेल्ड माइक्रोस्पोर इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। Okay, now out of vegetative and generative cell, only generative cell is a dividing cell. Again we will draw exine and intine. Vegetative cell will remain as it is,
dividing cell is the generative cell. So here we will write dividing generative cell. इसका मतलब क्या होता है कि क्या वेजिटेटिव सेल डिवाइड होगा? नहीं, जनरेटिव सेल डिवाइड होगा. जनरेटिव सेल विल डिवाइड, एंड जनरेटिव सेल जब डिवाइड होगा तो इसे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हम बोलेंगे. अब यहां से यहाँ पे what we will draw again, exine and intine we will draw. बहुत ही, let me rub and make it perfect. अब हमें क्या बताना है? जनरेटिव सेल को डिवाइड होते हुए बताना है, डिवाइडिंग जनरेटिव सेल. यहां पे वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे वी कैन शो दिस जनरेटिव सेल एज डिवाइडिंग सेल. यहां यही जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, लेट मी राइट हियर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन. जनरेटिव सेल विल डिवाइड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन. सेकेंड माइटोटिक डिवीजन से जनरेटिव सेल डिवाइड होके अब क्या बनेगा? यहाँ पे जैसे ही जनरेटिव सेल डिवाइड होगा, ये जो जर्म पोर है, हमने लिखी थी जर्म पोर इज थिन, सिंस इट इज थिन वॉल्ड, यहाँ पे there will be formation of pollen tube. From one of the germ tube, germ pore, pollen tube will form. और ये जो डिवाइडिंग जनरेटिव सेल डिवाइड हो चुका है, ये रहे जनरेटिव सेल, जिसे हम बोलेंगे मेल गैमीट. और लास्ट में यहां पे स्लिप होगा ट्यूब न्यूक्लियस. ट्यूब न्यूक्लियस. बाकी सारे सेल्स एज इट इज रहेंगे अंदर. ओनली वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल will, divided generative cell and vegetative cell will slip into the pollen tube, and remaining सारे tissues as it is रहते हैं pollen tube के. ठीक है. Now ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे a mature male gametophyte. This part we will call it as a mature male gametophyte. Mature male gametophyte. अब इससे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं. लेट अस मेक फ्लो चार्ट. नाउ लेट अस मेक फ्लो चार्ट कि हमने सबसे पहले क्या किया. सबसे पहले हमने लिया पोलन ग्रेन. अब यही पोलन ग्रेन माइटोसिस करेगा. दिस पोलन फर्स्ट माइटोसिस होगा और दो टाइप के सेल्स बनेंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. अब ये जो वेजिटेटिव सेल है उसके हम सर्टेन पॉइंट्स लिखेंगे. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेजिटेटिव सेल? सी, वेजिटेटिव सेल इज बेसिकली बिगर and
it is naked. Whereas when we talk about generative cell, it undergoes second mitotic division and forms टू मेल गैमीट या टू ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है. जनरेटिव सेल्स के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जैसे सबसे पहला, इट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल. इट इज थिन वॉल्ड. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज थिन वॉल्ड. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर विल बी इट इज रिच इन फूड and it has irregular nucleus. It has irregular nucleus. So अगर एग्जाम में कभी पूछा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो पहले आपको डायग्राम बनाना है. यू विल मेक दिस डायग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में. उसके बाद फ्लो चार्ट, पोलन ग्रेन के बारे में लिखने बोला तो ये सर्टेन चीजें आप कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट आई एम सॉरी, I'll write this again. Generative cell, एग्जाम में अगर कभी पूछे तो ये फ्लो चार्ट याद रखना. पोलन ग्रेन का आंसर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ब्रीफ के लिए पूछेंगे. प्लस फ्लो चार्ट विल बी इजी, पॉइंटर हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हैं, आप एग्जाम में लिख सकते हो.